નમસ્કાર. અતુલ્ય આઈએસમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. હું તમારી સાથે છું, ડૉક્ટર અતુલ સર. આજના આ વિડીયો સેશનમાં આપણે રેવન્યુ તલાટી, ડીવાયએસઓ પ્રિલિમિનરી અને જીપીએસસી મેન્સ માટે આન્સર રાઇટિંગ ટાસ્કમાં કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરવી અને સાથે એમસીક્યુઝ કેમ સોલ્વ કરવા તેની કેટલીક ચર્ચા કરીએ છીએ. લગભગ દરેક કન્ટેન્ટને તમારે સંતુલિત ન્યાય આપવો પડશે. કોઈ એક ટોપિક એવો હોય કે જેના પર તમારું પ્રભુત્વ હોય, પણ કોઈ અન્ય ટોપિક્સ એવા હોય જે વિકર જતા હોય, તો તેના માટે કયા પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી અપનાવી. અનેક છોકરા છોકરીઓ જીપીએસસી મેન્સના રાઇટિંગ ટાસ્ક માટે ટેસ્ટ સિરીઝની ડિમાન્ડ કરે છે, ફોન કરીને પૂછે છે. સમય અને બધી વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એ ઝડપથી શરૂ કરી દઈશું. પણ દરેક ટોપિકને તમે એક સરખો ન્યાય આપવાનો પ્રયાસ કરો. હવે આપણે પહેલી ચર્ચા જીપીએસસી મેન્સ માટે જો કરીએ તો ગુજરાતી અને અંગ્રેજી આ બંને વિષય એવા છે કે જેમાં તમારે માત્ર ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ લાવવાના છે. અને જ્યારે ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ લાવવાના હોય ત્યારે તમે તેના ડેપ્થમાં ન જાઓ એવું હું નથી કહેતો, પણ તમારો અભ્યાસ એ પ્રકારે કરો કે જે સ્ટાન્ડર્ડ 10th સુધી તમે જે ગુજરાતી ભણ્યા છો અને જે કન્ટેન્ટ તૈયાર કર્યું છે એ કન્ટેન્ટને અનુસરો, બંનેમાં, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી. એસે માટે એક ચોક્કસ પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી બનાવવી પડે. ખૂબ જ વિશાળ વાંચન હોય અને ખૂબ જ સારું લેખન કૌશલ્ય હોય, વિચારોની અભિવ્યક્તિ તર્કબદ્ધ હોય, સુસંગત હોય, આલોચનાત્મક પણ હોય, સમીક્ષાત્મક હોય અને પૃથ્થકરણાત્મક હોય, સાથે તાત્વિક પણ હોય, ત્યારે તમને એસેમાં સારા માર્ક્સ આવી શકે. આપણે એ બાબતનો એક અલગ જ સેશન રાખીશું. પણ જીએસના જે 4 પેપર્સ છે તમારા જીપીએસસી મેન્સ માટે, જેમાં જીએસ 1, 2 અને 3, જીએસ 4 માટે જીપીએસસી જે ગાઈડલાઈન પ્રસિદ્ધ કરી છે તે ગાઈડલાઈનનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. અને આ ગાઈડલાઈન મુજબ તમારે કોઈ વિશેષ જ્ઞાનની જરૂર નથી. જે ગાઈડલાઈન છે તે ગાઈડલાઈન એવું કહે છે કે એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ ચોક્કસ નિર્ણય કઈ રીતે કરી શકે, ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં, ચોક્કસ સંજોગોમાં, તેના આધારે જીએસ 4 ડ્રાફ્ટ થશે, જેમાં 8 કેસ સ્ટડી હશે.
અને 5 ક્વેશ્ચન્સ હશે જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હશે. એટલે જ્યારે આપણે મેન્સની તૈયારી કરીએ છીએ ત્યારે GS 1, 2, 3 આ ત્રણેય વિષયોમાં એક સરખું ફોર્મેટ જીપીએસએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે અને આ ફોર્મેટ મુજબ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ 10 અને વર્ડ્સ લિમિટ 150. So total 1500 words. I mean 1500 words you have to write. For different 5 questions. Word limit is 200. So 1000 for those 5 questions. Now 1500 words plus 1000 words, 2500 words. Now you need to write the whole paper in 2500 words in 180 minutes. हम कहाँ गलती करते हैं? हमारी गलती वहाँ होती है जहाँ हम शब्द मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते हैं. देखो, एक बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि हमारे पास 180 मिनट्स है और हमारे पास 2500 वर्ड्स की लिमिट है, मर्यादा है. और अगर आप 2500 वर्ड्स को 180 मिनट से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिनट में 14 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. सो यू नीड टू राइट 14 वर्ड्स पर मिनट. नाउ इफ यू आर राइटिंग द सेम थिंग तो आपको 2520 वर्ड्स आप लिख सकते हैं अगर 14 वर्ड्स पर मिनट आप लिखते हैं तो. अब 1 मिनट में 14 वर्ड्स लिखना कैसे संभव होगा? यहां 2 बातें आपके सामने आएगी. जो पहली बात आएगी वो आपका हैंड राइटिंग, वो कैसा है. ध्यान से मेरी बात सुना. और दूसरी बात, आप किस स्पीड से लिख रहे हैं, आपके लिखने की स्पीड कितनी है, कैसी है. जैसे 14 वर्ड्स आप पर मिनट में लिखते हो तो उसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको अपनी राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर कोई बच्चा सिर्फ 10 वर्ड्स पर मिनट लिख रहा है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो मेंस में आ सकता है. कोई चांस ही नहीं बनेगा, कोई भी चांस नहीं बनेगा कि वो आ सकता है, क्योंकि स्पीड कम है. और ऐसी स्थिति में जब स्पीड कम है और आपको लिखना है तब आप, और ऐसी स्थिति में जब आपकी स्पीड कम है, यानी कि सपोज आप 10 वर्ड्स पर मिनट लिख रहे हैं तो आपके पास वक्त बहुत कम है. आपके हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए और इसके साथ
आपका जो राइटिंग टास्क है, जो उसकी मर्यादा है शब्दों की, जो उसकी स्पीड है, वो कैसी होगी। तो यहां दो बातें आपके सामने आएंगी। एक वर्ड स्पीड, जिसे मैं WS बोलूंगा, और एक TL यानी कि टाइम लिमिट बोलूंगा। और इन दोनों के बीच एक और बात आएगी, और वो होगी आपका थिंकिंग पावर। साथ में एक और बात भी आ जाएगी। थिंकिंग पावर के साथ ही और वो बात रहेगी, आप किस तरह से लिख रहे हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपका जो थिंकिंग है, उसी के साथ आपका एक्शन है क्या। यानी थिंकिंग और एक्शन का कोऑर्डिनेशन है या नहीं। यानी T वेयर एक्शन। अब ये दो बातें आपके सामने आई कि आपका थिंकिंग कुछ इस तरह चल रहा है जो एक्शन में परिवर्तित हो रहा है उसी वक्त। जो लिख रहे हो आप, ध्यान से सुनो, जो लिख रहे हो वही सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वही लिख रहे हो। यानी इनमें कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तालमेल के साथ वो चल रहे हैं साथ में। यानी कि आपका थॉट और आपकी एक्शन। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में ये एक बात और भी आ जाएगी, वो हैंड राइटिंग की। वो भी आपको अच्छे करने हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका नाम X है, एक Y है, ये दोनों, और एक तीसरा भी है, समझ लो वो Z है। अब तीनों ने एक ही इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है। तीनों ने एक सवाल का जो उत्तर है सही तरीके से दिया है। तीनों ने जो उत्तर देना चाहिए, इनमें जो भी टॉपिक्स आने चाहिए, जो भी कंटेंट आने चाहिए, वो एक समान लिखे हुए हैं। अब समझ लो यहां जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर X नाम के बच्चे का हैंड राइटिंग या बच्चे की हैंड राइटिंग वो अच्छी है, परीक्षक पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो शायद उसको 7 मार्क्स मिल जाए या 6.5 मार्क्स मिल जाए। वैसे 10 मार्क्स से 6.5 मार्क्स लेना यह भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम थोड़े से लिबरल हो जाते हैं। आज Y नाम का जो बच्चा है उसका हैंडराइटिंग ठीक है, इतना अच्छा नहीं है जितना इसका है, तो इसको यहाँ मैक्सिमम 6 और यहाँ 5.5 मिल सकते हैं। और Z नाम का बच्चा है जिनके हैंडराइटिंग समझ ही नहीं आ रहे, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या होगा। अब ये 5.5 मार्क्स वाला जो बच्चा है जो कि Y है, 10 क्वेश्चन उसने अटेंड किए, यानी इसका मीनिंग ये हुआ
कि इनको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 5.5 से 10 से मल्टीपल अगर हम करेंगे और ये 6.5 से 10 से मल्टीपल करेंगे तो आप उसका वेरिएशन देखोगे तो 10 मार्क्स का आ जाएगा। तो हैंडराइटिंग विल प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर योर मेरिट। अब जैसे मैंने बताया आपको कि आपके थॉट और एक्शन में तालमेल होना चाहिए, यानी आप जो भी लिख रहे हैं वही सोच रहे हो और जो सोच रहे हैं वही लिख रहे हो। इन दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है? लिसन टू मी केयरफुली। साथ में आपको अपने हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना है। जब आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो सकता है आपके हैंडराइटिंग बिगड़ जाए। और अगर हैंडराइटिंग पर ही फोकस कर रहे हैं हम तो जो टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि वर्ड्स की जो स्पीड है लिखने की और जो टाइम का जो लिमिट है इसके बीच में जो थिंकिंग पावर आपका आता है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करेगा। किस तरह से? अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अद्भुत सिस्टम है बॉडी में, वो है प्राइमिटिव न्यूरॉन सिस्टम। ध्यान से सुनना, पीएनएस। ये प्राइमिटिव न्यूरॉन सिस्टम वैसे तो लोअर एनिमल्स में ज्यादा दिखी जाती है लेकिन ह्यूमंस में भी है। यह प्राइमिटिव न्यूरॉन सिस्टम का काम है एक मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करना, और वो मैकेनिज्म को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। वॉल्टर कैनन ने बहुत उस पर प्रयोग किए हैं। वॉल्टर कैनन ने ये साबित कर दिया कि अगर प्राइमिटिव न्यूरॉन सिस्टम हमारी एक्टिव हो जाती है तुरंत ही, तो प्राइमिटिव का मीनिंग हुआ बहुत पुरानी आदिकाल से चलने वाली, यानी कि जिसे बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। अगर प्राइमिटिव न्यूरॉन सिस्टम को हम कंट्रोल में लगा देते हैं, वो किस तरह लगाएंगे वो भी बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपके पास ये वर्ड स्पीड, टाइम लिमिट और थिंकिंग पावर, इनका क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसमें कोई दुविधा ही नहीं आएगी। तो प्राइमिटिव न्यूरॉन सिस्टम काम कैसे करेगी और ये है क्या? आपको पता है हमारी बॉडी में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। कुछ इस तरह ही इसका काम 3 है। एक काम है उसका फाइट, दूसरा है फ्लाइट और तीसरा है हाइड, HID, छुप जाना। या तो वो प्रतिकार करेगा। देखो यहां आप जब लिख रहे हो तब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन की एक खासियत यह है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता कि क्या रियलिटी है क्या इमेजिनेशन है। ये ह्यूमन ब्रेन की विशेषता है। वो ये नहीं समझ पा रहा है
कि जो हो रहा है वो रियल है या जो हो रहा है वो इमेजिनेटिव है। तो इससे क्या होगा? जब मैं अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज में अपना एमबीबीएस का स्टडी कर रहा था, तब एक सर्जरी में वर्ड आया था, वो था फैंटम्स पेन। आपको शायद ये पता होगा कि हम टेट्रापॉड एनिमल्स हैं, हमारे पास 4 लिम्ब है और ये प्राइमेटिव न्यूरॉन सिस्टम हमारे लिम्ब्स को तैयार करती है। जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मैं फैंटम्स पेन की बात भी कर रहा हूं साथ में, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब ये डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन स्पीड बढ़ जाती है, बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसको, जैसे कोई कंडीशन हमारे सामने ऐसी आ गई है, ये तभी की बात मैं कर रहा हूं, और जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। करना क्या है वो समझ नहीं रहा है। ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा ब्लड में, ज्यादा एनर्जी आ जाएगी दोनों लिम्ब में, क्योंकि लिम्ब से तो हम काम कर रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर। तो क्या होगा? हमारे 2 पैरों की मदद से हम दौड़ सकते हैं, हमारे 2 हाथों की मदद से अपना डिफेंस कर सकते हैं, और वही होगा या तो फाइट FIGHT या फिर फ्लाइट FLIGHT, वही टेट्रापॉड से हम झुक जाएंगे कि नहीं करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाएगी, और तीसरा हो जाएगा हाइड। हम छुपने का प्रयास करेंगे, हम बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जो हो रहा है वो इमेजिनेटिव है या रियल है। अब फैंटम्स पेन क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी अभी। सपोज किसी एक आदमी को डायबिटिक है, और डायबिटीज की वजह से, वो डायबिटिक है, डायबिटीज की वजह से उसका लोअर लिम्ब में कोई एक पैर का एम्पिटेशन हो गया। एम्पिटेशन यानी सर्जरी, यानी रिमूवल ऑफ लेग। अब लेग तो नहीं है, पाँव नहीं है, लेकिन गैंग्रीन हुआ था उसे। आपने शायद सुना होगा, गैंग्रीन की पीड़ा असह्य होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, इनटॉलरेबल होती है। तो उसके दिमाग में वही ख्यालात आते हैं। अब उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल दे रहे हैं ब्रेन को, और ब्रेन कुछ समझ नहीं पा रहा ये रियल है या इमेजिनेटिव है। तो होगा क्या? यही होगा कि वो जो नहीं है, उसका जो पैर कट गया है, जो है ही नहीं, वहां उसे बर्निंग जैसा थोड़े वक्त के लिए फील होगा, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए। ये बर्निंग सेंसेशन वो तो है ही नहीं, वो पाँव तो नहीं है, जहां बर्निंग उसे हो रहा था वो तो निकल गया है, एम्पिटेशन हो गया है उसे।
लेकिन न्यूरॉन अपना काम कर रहे हैं। इस पेन को बोलते हैं फेंटम्स में। अब इसका मतलब यहां आप बोलेंगे कि सर क्या है? देखो, जैसे आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, मैं बात करता हूं वर्ड स्पीड को। आपको 14 वर्ड लिखने हैं पर मिनट, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूस, कि आप 14 वर्ड्स मिनिमम लिख पा रहे हो या नहीं। आपको बहुत आगे भी नहीं बढ़ना है, क्योंकि हैंडराइटिंग का भी ख्याल तो करना ही है हमें। अगर हम हैंडराइटिंग का ख्याल नहीं करेंगे तो ये जेड वाला बच्चा जो है क्वेश्चन मार्क वाला, उसकी तरह हो जाएगा, या फिर कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और हमारे मेरिट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने बोला एक्स ने जो लिखा है वही वाई ने लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर डिफरेंस बढ़ जाता है, अगर गैप बढ़ जाता है ऑप्टेन मार्क्स का, तो मेरिट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्राइमेटिव न्यूरॉन सिस्टम जो पीएनएस है वो काम करती है। हम अपने आप को सिग्नल दे रहे हैं, अपने आप को हम अपने आप को सिग्नल देंगे, शांति रखो, लिखना है, सोचना भी है, और जो दिमाग में आ रहा है वो योग्य है, वो लिंक है, तर्कसंगत है, सुसंगत है, और वही हम लिख रहे हैं। तो ऐसी बातें एग्जाम हॉल में जब आप मेंस देने जाएंगे या फिर जा रहे हो, तो अभी जो प्राइमेटिव न्यूरॉन सिस्टम है जो कि हमारे बस में हमें करनी है, ये होता है हमारे थॉट से। हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ लिखना है वर्ड स्पीड के साथ, टाइम लिमिट के साथ। अब 2520 वर्ड्स की लिमिट आपके आ गई। 14 की हैसियत से हम अगर देखते हैं कि हम 14 वर्ड्स पर मिनट लिखते हैं, तो देखो अगर इससे ज्यादा हो गया तो भी नुकसानकारक है, और कम होता है तो भी नुकसानकारक है। कम से कम आपको दिन में 24 आवर्स में 15 से 20 सवाल के उत्तर लिखने हैं। तो आपको दिन में 10 से 15 सवाल, 20 सवाल तक मैं तो बोलूंगा उत्तर तैयार करने हैं। ये एक प्रकार का प्रैक्टिसिंग वर्क है। आपके आसपास क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाओ। यानी आपकी जो प्राइमेटिव न्यूरॉन सिस्टम है उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, जो प्राइमेटिव न्यूरॉन सिस्टम है उसको डीएक्टिवेट करना है। आपने शायद मेरे फिलोसॉफी के लेक्चर्स अगर यहां देखे हैं, सुने हैं, तो मैंने कई बार बोला है मेरे सब फिलोसॉफी के वीडियो सेशंस में
जब मैंने वेदास की बात की होगी, पर्टिकुलरली ऋग्वेद की बात की होगी, उपनिषद की बात की होगी, तब एक महावाक्य आपके सामने आया था, त्वमसि। यह उपनिषद का एक महावाक्य है और मुझे पता नहीं है कि आपको पता है या नहीं, लेकिन केरला में शबरीमाला मंदिर के बाहर ये लिखा हुआ है। सब जगह, सब मंदिरों में जहाँ साउथ इंडियन टेम्पल्स है, तो मसी का मीनिंग ही यही होता है, हमें अपने आप को ही कंट्रोल में लाना है। ये जो प्राइमेटिव न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। और दूसरी बात, हमारी बॉडी में एक अद्भुत ग्लैंड है जिसे बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। आप उसको बोल सकते हैं हमारी बायोलॉजिकल साइकिल है, यानी कि वो कंटिन्यूसली हमें सिग्नल पास कर रही है ग्लैंड। वक्त पे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, हम उठ जाते हैं। हमारा सब शेड्यूल जो भी हम बनाते हैं उसको एक पिनियल ग्लैंड फॉलो करती है और हमें सतर्क करती रहती है। तो अगर इन सब बातों को हम समझें अच्छी तरह से, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको इस तरह करनी है जिसमें, जैसे मैंने बताया, वर्ड लिमिट यानी वर्ड स्पीड, साथ में टाइम लिमिट। वर्ड स्पीड या वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट की बात आई तब बाउंड्री की बात मैं कर रहा हूं, वर्ड स्पीड की बात आई तब मैं बात कर रहा हूं हम कितनी स्पीड रखते हैं। क्योंकि वर्ड लिमिट की बात अगर हम करेंगे तो वो तो 2500 वर्ड्स की लिमिट है। अब हमें 2500 वर्ड्स की लिमिट तक पहुंचना है। आप मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। अगर हम 2500 वर्ड्स की स्पीड तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि लिमिट है, 2500 वर्ड्स की लिमिट तक हम पहुंचना चाहते हैं, स्पीड तक नहीं, लिमिट। तो 2500 वर्ड्स की लिमिट तक पहुंचने के लिए हमें कितनी स्पीड करनी चाहिए, कितनी स्पीड रखनी चाहिए। आप कार में जा रहे हो, आपको 100 किलोमीटर पास करने हैं, आप गाड़ी को कितना एक्सेलेरेट करते हो, आपकी स्पीड कितनी है कि आप नियत समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। तो ये बातें बहुत जरूरी है और यही बात लागू होती है डीवाईएसओ और रेवेन्यू तलाठी प्रीलिम में। डीवाईएसओ में तो बहुत टाइम लिमिट कम है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंट करना है। आप पूछेंगे कि सर हम कैसे एक्सीलेंट करेंगे, एलिमिनेशन कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का जो एमसीक्यू में है। अगर एसेशन रीजन के कुछ सवाल आ गए, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, तो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है, हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कुछ इस तरह जैसे आपको समझाया। आपके थॉट और एक्शन में ट्यूनिंग होना चाहिए। 200 क्वेश्चंस कोई भी बच्चा रेशनली अटेंड नहीं कर पाएगा। मैं आपको मिसलीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी पर ला रहा हूं। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जहां बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। कितना भी क्लेवर बच्चा क्यों ना हो, लेकिन कम टाइम में 200 क्वेश्चंस को अटेंड करना एमसीक्यू के लिए, ये दुर्भाग्यवश नहीं हो सकता।
एक ही उपाय है इसके लिए, हो सकता है, और पेपर एकदम क्वेश्चन पेपर एकदम लिबरल निकले, जैसे वन वर्ड जहां एसेशन रीजन नहीं है, लंबी लंबी लाइनें नहीं दी गई हैं, मैच द फॉलोइंग नहीं है। मैं ये समझ कर चल रहा हूं कि डीवाईएसओ में कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा सकेंगे। अगर उन सभी बच्चों के पास उसका उत्तर है, फिर भी नहीं हो सकता, टाइम लिमिट है। तो मैंने यही वेरिएशन आपको यहां बताया है। देखो, आप जब किसी एक फिजिक्स का लॉ आपको मैं समझाता हूं, किसी रास्ते पर जा रहे हैं और टर्न आ रहा है, ज्यादा टर्न है, तो जो उसकी आउटर सरफेस है टर्न की, वो थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा होगी, और जो बाहरी सरफेस है वो कम होगी। इसे बोलते हैं बैंकिंग फोर्स। ताकि गाड़ी को बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में तकलीफ ना हो, बहुत कुछ उसका आयाम है। तो हमें यहाँ वही बात अमल में लानी है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, कितनी स्पीड से जा सकते हैं। वो भी स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमें नुकसानकारक हो जाए, हम गलत आंसर लिख के आए और बाद में पता चले एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद कि ये आंसर तो मुझे पता था, मैंने तो गलत लिख दिया। ये गलत क्यों लिखा? गलत इसलिए लिखा कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे। तो इतना भी सोचना नहीं है। एक अद्भुत फिल्मी डायलॉग है, शायद अमिताभ बच्चन जी का है। आदमी की सोच जब गहरी होती है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि सोचना ही नहीं है, सोचे बिना आप उत्तर लिख ही नहीं सकते। सोचना भी है, समझना भी है, अच्छी तरह से अटेंड भी करना है। आपके अपने ही हाथों में आपका भविष्य है, उसे मत बिगाड़ो। मैं कल से करंट अफेयर आपको देने वाला हूं। जैसे एक करंट अफेयर में एक बात आजकल आ रही है, वो है केरला, जहां डिजिटल लिटरेसी 100% है। डिजिटल लिटरेसी 100% पाने वाला वो पहला स्टेट इंडिया का बन गया है। मैं लिटरेसी रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं डिजिटल लिटरेसी। यानी कि कोई आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसे मोबाइल का यूज करना आता है अच्छी तरह से, उसे बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मिशन बनाए हैं डिजिटल इंडिया के लिए, इनमें से एक यही है। तो केरला में डिजिटल लिटरेसी 100% है, 100% वहां आ गया डिजिटल लिटरेसी। और डिजिटल लिटरेसी से क्या होगा? अब आपके सामने दो सवाल आएंगे, एक आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, और दूसरा आएगा जैसे मैंने बोला था EI, इमोशनल इंटेलिजेंसी। इन दोनों के बीच द्वंद्व चलेगा, कुछ लिमिट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, हम बात करेंगे उसकी। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज्यादा हो गया। फिर क्लाइमेट चेंजेस की बात बहुत हो रही है।
मॉइस्चर बढ़ रहा है, और वही रीजन है कि जो क्लाउड्स है वो फट रहे हैं। तो जियोग्राफिकल रीजन उसके क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिसकी वजह से ये न सिर्फ नॉर्थ में ही हो रहा है बल्कि लगभग हर जगह हो रहा है। वेल, करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, घबराने की बात नहीं है। दस 15 मिनट का सेशन करंट अफेयर का जो होगा वो हम देने वाले हैं एवरीडे। साथ में जैसे मैंने बोला जीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करा है। साथ में मैंने ये भी बोला कि हम डीवाईएसओ और रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, जितना भी हो सकेगा। अतुल्य आईएएस की ओर से मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं करूंगा आपके लिए। बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप घबराओगे, परेशान हो जाओगे तो कारकिर्दी नहीं बन सकती। कारकिर्दी बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला है अभी, समझना है, सोचना है, आगे बढ़ना है, और वही बात हम करेंगे। कल फिर मिलेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स में बातें आ रही है वो आपको डे टू डे अपडेट होना है उन सब बातों से। हम एक फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत कर रहे हैं। लिसन टू मी, we can achieve our target with the help of two things. One is willpower and second one is planning. If you are planning according to our willpower, and if our willpower work according to our planning, then definitely success will be in your hands. So you need to link both the things, willpower as well as planning. फिलोसॉफी में एक कंसेप्ट आएगा जो कि बहुत ही चर्चास्पद है, जनरल विल वाला। इसकी बातें हम बाद में करेंगे। सो यू नीड टू लिंक बोथ द थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू आर प्रिपेयरिंग द थिंग्स। अब यहां मैंने GS4 की बात मैं करने वाला था, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास, समय की मर्यादा है। यहाँ जो केस स्टडी है वो 8 आएंगे और क्वेश्चंस 5 आएंगे, तो यहाँ कुछ वर्ड्स लिमिट कम हो रही है। यानी कि GS4 में, जीपीएससी में केस स्टडी 8, 200 वर्ड्स की लिमिट, 1600 टोटल वर्ड्स हुए, 5 क्वेश्चंस, 150 वर्ड्स की लिमिट, 750 वर्ड्स, टोटल 2350 वर्ड्स आएंगे। थोड़े से कम आ रहे हैं 150 वर्ड्स यहाँ पे। अब केस स्टडी की बात करेंगे तो हम केस स्टडी के बारे में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला है, केस स्टडी के तैयार करने के लिए आपको बहुत कुछ बातों का स्टडी करना पड़ेगा, और केस स्टडी तैयार करना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ जरूरी। जो CBSE में जो बच्चे पढ़े हैं उनको केस स्टडी के बारे में मालूम है। उनके क्वेश्चंस भी कुछ इस तरह से निकलते हैं जिसमें केस स्टडी आ जाते हैं। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी का स्टडी किया है तो रामन राघव नाम का एक सीरियल किलर मुंबई में हुआ करता था 1965-1970 के आसपास, रामन राघव। और उस आदमी ने जैसे कि कन्फेस किया था मुंबई पुलिस के सामने, 40 से भी ज़्यादा मर्डर किए थे।
आई थिंक 1995 में उसका डेथ हो गया, और वो स्किज़ोफ्रेनिक था, साइकोपैथिक था। एक केस स्टडी ऐसा भी आ सकता है, कुछ ऐसे केस स्टडी जिसमें आपको एक ब्यूरोक्रेट है, आप एक अधिकारी हैं, और कौन सी परिस्थिति में कैसा डिसीजन दे सकते हैं। आपके सामने कुछ परिस्थितियां दी जाएगी, ये इंटरव्यू में भी आएगा, और उसी परिस्थितियों के मुताबिक आप कौन सा डिसीजन ले सकेंगे जो कि सबसे बेहतर होगा। डिसीजन आप जब लेंगे तो आपके सामने बहुत सारे डिसीजन आ सकते हैं। आप 4-5 डिसीजन में से कोई एक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन समाज के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा वो आपको चुनना होगा। तो कुछ उसकी भी बातें हम करेंगे। फिर मिलते हैं। कल से हम करंट अफेयर भी शुरू करेंगे और एक नोट्स भी बनाना शुरू कर देंगे। जितना भी वक्त हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे मैंने बोला 15-20 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन एवरीडे होना चाहिए, लिखना चाहिए। ये सब बातें मेरे दिमाग में भी चल रही है और आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।